Hello students, as you know we are studying the chapter 18 of class 8 science, and here in this chapter we are discussing about the pollution of air and water. And In previous videos we had discussed about the pollution, what is pollution, how many types of pollution is there, and what are the different kinds of pollutants that cause the pollution. And we had talked about air pollution especially, and the sources and effect of air pollution on the environment, and what are the different sources that are polluting our environment and causing the bad effect on our environment. We had discussed about all, and here in this video we are going to discuss about the control of air pollution. How can we control air pollution? As you know, the air pollution is not a good thing. It is a very bad event occurring on our earth and causing to the hazardous effect on the every element of our environment and of our earth. So it is very necessary to control and prevent the air pollution so that the life on the earth can be more safe. So let's start. So before starting the video, we will see data. That is it. That air pollution is killing 1.4 million people per year all around the world. Okay, due to the air pollution, people are suffering with the stroke, and they are dying, and it is a silent killer. Air pollution is a silent killer. It kills the people silently. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1.4 मिलियन लोग जो हैं वो हर साल एयर पोल्यूशन की वजह से जो उनको स्ट्रोक एक प्रॉब्लम होती है और उनकी वजह से वो मर जाते हैं. तो दिस इज़ द डेटा ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट इज़ शोइंग द वेरी हैज़ार्डस इफेक्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, इस डेटा में आप देख सकते हो कि पोल्यूशन किल्स 8.3 मिलियन पीपल एनुअली. ठीक है, 8.3 मिलियन पीपल जो हैं वो हर साल जो है वो मर रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया इज़ ऑन द टॉप. ओके, 2.33 मिलियन पीपल आर गेटिंग डाइड ड्यू टू द एयर पोल्यूशन. And here you can see in China 1.87 million people, and likewise you can see the whole data. Okay, so you can see here the India is on the top in the death by the air pollution. ठीक है, so this is very dangerous, and it is like a silent killer. एयर पोल्यूशन जो है वो साइलेंटली हमारे हेल्थ पर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है, वर्स इफ़ेक्ट डालता है, और उससे क्या होता है, बहुत सारी डिजीज़ेस होती हैं. लाइक यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट एयर पोल्यूशन के क्या होता है. हेडेक. ओके, दिस इज़ हेडेक, नोज, थ्रोट, आई इन्फ्लेमेशन, कफिंग, पेनफुल ब्रीदिंग. अगर आप एयर पोल्यूटेड एरिया में हो तो वहाँ पे डायरेक्टली जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट आपके ऊपर क्या होगा, देखिए, न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस, स्किन इरिटेशन. यहाँ पे आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म इफेक्ट, मतलब लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा एयर पोल्यूशन का. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इट अफेक्ट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, जिससे आपको हेडेक एंड एंग्जाइटी, स्ट्रेस रहता है. कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हार्ट डिजीज़ेस हो जाती हैं. रेस्पिरेटरी डिजीज़, अस्थमा, कैंसर टाइप की डिजीज़ेस हो जाती हैं. इम्पैक्ट ऑन लीवर पे भी ये असर डालता है. इम्पैक्ट ऑन इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल. Okay, so like you can see that the air pollution is affecting very badly. And here you can see the case study of the Taj Mahal. As you know, the Taj Mahal is a very famous monument in the world, and this is the pride of India, and due to the air pollution it is getting in danger. यहाँ पे आप देख सकते हो, the Taj Mahal, India's most famous tourist attraction, is getting discolored. आपको पता है ताजमहल जो है वर्ल्ड फेमस है, बट और ये अपने कलर की वजह से, वाइट कलर की वजह से, इसमें जो स्टोन्स लगे हुए हैं, एंड उस स्टोन का जो कलर है वो डिसकलर हो रहा है बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन. इंडस्ट्रीज़ लाइक रबर प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल इंडस्ट्रीज एंड द मथुरा ऑयल रिफाइनरी produce pollutants like sulfur dioxide, nitrogen dioxide that react with water vapor present in the air to form sulfuric acid and nitric acid. हो क्या रहा है कि ताजमहल के आसपास जो
फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, जैसे रबर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, केमिकल इंडस्ट्री, मथुरा ऑयल रिफाइनरी, ये सारी इंडस्ट्रीज़ एंड रिफाइनरीज जो हैं उन इंडस्ट्री से जो स्मोक्स एंड फ्यूम्स निकलते हैं उसमें हार्मफुल गैसेज हैं लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये गैसेस जो हैं क्या करते हैं, वाटर वेपर से रिएक्ट करते हैं इनटू द एनवायरनमेंट एंड दे रिएक्ट विद द वाटर, ठीक है, लाइक दिस, एंड दे मेक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस SO2 विल combine with water and it will make an acid, that is sulfuric acid. Likewise, nitrogen dioxide will also combine with water vapor and it will make HNO3, nitric acid. Okay, and these acid will fall with the rain and it this is called acid rain, ठीक है। तो acid rain जो ये acid है it will fall over the Taj Mahal, and because of that acid the color of the stone of the Taj Mahal is getting discolored, ठीक है। तो कलर जो है वो क्या हो रहा है, it is becoming yellowish, ठीक है, येलोइश हो रहा है एसिड की वजह से, एसिड रेन की वजह से। जो ये मार्बल लगा हुआ है उसमें वो एसिड क्या करता है, उसको कोरोड कर देता है, ठीक है। दिस फेनामिनन इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज मार्बल कैंसर। इस फेनामिनन को आप क्या बोलते हो, मार्बल कैंसर बोलते हो, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड मार्बल कैंसर। जो ये मार्बल जो है वो डिसकलर हो रहा है, येलोइश हो रहा है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड इंडस्ट्रीज टू यूज़ क्लीनर फ्यूल्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि यहाँ पे आसपास के एरिया में जो है फ्यूल जो हम ऑटोमोबाइल में यूज़ करते हैं वहाँ पे हम क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल करें ताकि ये गैसेस जो है हार्मफुल गैसेस वो कम से कम रिलीज़ हों। लाइक हमारा क्लीन फ्यूल हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG, ये सारी गैसेस के बर्निंग से जो है वो हार्मफुल गैसेस नहीं निकलती हैं, ठीक है। तो दिस क्लीन गैस शुड बी यूज्ड, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया टू सेव द ताज महल। इंडस्ट्रीज़ अराउंड ताज महल हैव ऑल्सो बीन शट डाउन, और जो बहुत करीब की बहुत पास की जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको शट डाउन करने का भी ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। थिंक वॉट वुड हैपन टू प्लांट एंड एनिमल व्हेन देयर इज एसिड रेन, ठीक है। आप ये सोचो कि ये क्या है, पत्थर है, ये मार्बल है, उसके ऊपर एसिड रेन का इतना वर्स इफेक्ट पड़ रहा है, तो सोचिए प्लांट्स और एनिमल्स पे क्या एसिड रेन का इफेक्ट पड़ेगा। एसिड रेन जो एसिड है वो प्लांट्स और एनिमल्स को भी बर्न करेगा, कोरोड करेगा, है ना, इट विल कॉज कैंसर। सो इट इज़ हाईली डेंजरस फॉर द हेल्थ ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल एज इट इज़ कॉजिंग हार्म टू द मॉन्यूमेंट्स एज वेल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये एयर पोल्यूशन है वो लिविंग बीइंग्स को तो हार्म कर ही रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, ये नॉन लिविंग थिंग्स को भी, ठीक है, ये क्या कर रहा है, हार्म पहुंचा रहा है। ओके, सो that's why it is very necessary to know about the things that how can we control the air pollution। इसीलिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हम पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें ताकि ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मिनिमाइज़ हो सकें, ठीक है, ख़त्म हो सके। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। टू मिनिमाइज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एमिशन रिडक्शन डिवाइसेस शुड बी यूज्ड इन चिमनी। आप जानते हो फैक्ट्रीज से जो धुएँ निकलते हैं चिमनी के थ्रू, उसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट होते हैं, तो उन चिमनियों में, उन इंडस्ट्री में हम क्या करें, एमिशन रिडक्शन डिवाइसेस का इस्तेमाल करें। ऐसी डिवाइसेस जो क्या करती हैं, पोल्यूटेंट को सेपरेट कर देती हैं, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, स्क्रबर। ये डिवाइसेस क्या करती हैं, जब चिमनी में हम फिट कर देते हैं तो चिमनी से जब स्मोक निकलता है तो उसमें से ये पोल्यूटेंट्स को, हार्मफुल पार्टिकल्स को, गैसेस को ये क्या कर लेती है, सेपरेट कर लेती है, होल्ड ऑन कर लेती है, और जो धुआं निकलता है वो लेस डेंजरस होता है, लेस पोल्यूशन कॉजिंग होता है, ठीक है। एमिशंस फ्रॉम व्हीकल कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग अनलेडेड पेट्रोल, ठीक है। जो हम पेट्रोल यूज़ करते हैं उसमें हम लेड नाम का एक मेटल है, हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस लेड जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ होता है, लेड के फ्यूम्स, ठीक है, स्मोक में रिलीज़ होते हैं, एंड इट इज़ हाईली डेंजरस फॉर द हेल्थ, ठीक है। तो हम व्हीकल में जो भी पेट्रोल यूज़ करते हैं उसमें लेड नहीं होना चाहिए, हम अनलेडेड पेट्रोल का इस्तेमाल करें जहाँ तक हो सके। इलेक्ट्रिसिटी शुड बी यूज्ड only when required, ठीक है। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू सेव द इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी जो हम कोल से प्रोड्यूस करते हैं, वी प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी बाय बर्निंग द कोल। ठीक है, तो अगर हम कोल को जो है अगर हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं बचा रहे हैं, इसका मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा कोल बर्न कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा आप कोल बर्न करोगे तो आपको पता है कि उससे कोल के बर्न करने से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस लाइक CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसे सारी गैसेस निकलती हैं, कार्बन के पार्टिकल्स निकलते हैं, एशेस निकलती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना बहुत नेसेसरी है। लाइक आप रूम में होते हो, रूम से बाहर निकलते हो, तो जो भी आपके कमरे में बल्ब है, जो भी अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं जिसका आप इस्तेमाल नहीं करने वाले हो, आप रूम से बाहर जा रहे हो, तो यू शुड स्विच ऑफ दैट। ओके, अननेसेसरीली उसको ऑन करके छोड़ना नहीं चाहिए। नॉन पोल्यूटिंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें अदर बहुत ऐसे सोर्सेज हमें ढूंढने चाहिए जो क्या हो, नॉन पोल्यूटिंग हो, जो नीट एंड क्लीन हो, लाइक सोलर एनर्जी। ठीक है, हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करें, हाइड्रो एनर्जी का प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो क्या होगा, it will be easier to save the earth. Now the next, what should we do to control the air pollution? Next हमें क्या करना चाहिए, we should not burn ड्राई लीव्स, पेपर्स एंड गार्बेज इन द ओपन। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो लीव्स हैं, ड्राई लीव्स हैं, पेपर, गार्बेज, इन सारी चीज़ों को ओपनली हमें बर्न नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओपनली बर्न करते हैं तो क्या होता है, इन सारी चीज़ों के जलने से कार्बन पार्टिकल्स, सूट पार्टिकल्स जो है एयर में रिलीज़ होते हैं, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस भी रिलीज़ होती हैं जो कि एयर को पोल्यूट करती हैं। रेडिएशन पोल्यूशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए, वे जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हम इस्तेमाल करें रिसर्च में या कहीं भी थर्मल पावर में या एनीवेयर, तो वहाँ पे हमें सेफ्टी मेजर अपनाना चाहिए ताकि कोई लीकेज ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, ताकि रेडिएशन जो है वो एनवायरनमेंट में ऐड ना हो। प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए हाउस होल्ड पोल्यूशन को रोकने के लिए। आप घरों में जो आप अपने कमरों में जो खिड़कियाँ बनवाते हो, विंडोज़, वो क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के आमने सामने होनी चाहिए, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन के थ्रू जो पोल्यूटेड एयर है वो बाहर चली जाएगी और फ्रेश एयर आपके रूम में एंटर होगी। तो हाउस होल्ड पोल्यूशन भी एक बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ है और उससे बचना चाहिए। हमें क्रॉस वेंटिलेशन का ये मेथड फॉलो करना चाहिए। प्लांटिंग ऑफ ट्री इज़ अ नेचुरल वे टू कर्ब एयर पोल्यूशन स्पेशली इन एंड अराउंड इंडस्ट्रीज़। ठीक है, जहाँ कहीं भी ज़्यादातर जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन, वहाँ पे हमें ट्रीज़ प्लांट करने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है ट्रीज़ जो है नेचुरली हार्मफुल गैसेस को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और बदले में हमको फ्रेश एयर देते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो प्लांटिंग ट्रीज़ जो है, ट्रीज़ प्लांट करना, पेड़ पौधे लगाना सबसे सस्ता, सबसे आसान और सबसे ईजी जो तरीका है। ओके, नाउ वी शुड ज्वाइन से नो टू क्रैकर कैंपेन। हम आपको पता है क्रैकर्स बर्स्ट करने से जो बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, तो हमें क्रैकर्स कम से कम बर्न करने चाहिए, बर्स्ट करने चाहिए एट एनी फेस्टिवल और एट एनी फंक्शंस। यूज़ ऑफ LPG इन हाउसेज एंड CNG इन व्हीकल। ठीक है, ये क्या है, दीज आर द क्लीन फ्यूल। तो हमें घरों में अगर खाना बनाना हो तो हमें LPG यूज़ करना चाहिए, क्योंकि LPG आप बर्न करते हो तो कोई आपको हार्मफुल गैसेस नहीं निकलती हैं। एंड CNG भी एक क्लीन फ्यूल है, इसको हम व्हीकल में इस्तेमाल करें पेट्रोल डीजल के अलावा, तो क्या होगा, ऑटोमोबाइल से भी पोल्यूटेंट्स जो है कम से कम रिलीज़ होंगे टू द एनवायरनमेंट। सो दीज आर सम मेथड्स, सम पॉइंट्स वी शुड फॉलो इन आवर डेली लाइफ टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन एंड सो दैट आवर अर्थ कैन बी safe. So this is all for this video. Thank you.